हेलो एवरीवन, बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, मीन्स टू से आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे प्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है, हाउ इट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट्स कवर। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिलीवर किया था, आई होप वो आपने अटेंड कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन। सो लेट्स कवर presentation. What is the mean of presentation? Presentation is the latest method to deliver one's view, okay, ideas, thoughts and facts for a similar group of persons. Presentation is the latest, it is the latest method to deliver one's view, ideas or thoughts. It is more effective than seminar and conference. In a presentation, a topic is discussed and each presenter is given sufficient time to put his view on justifications. ठीक है, तो presentation is a formal way of communication in which part speaker यानी या फिर जो भी presenter है discuss their ideas, their views, their knowledge on a such particular matter or particular subject. Okay, and it is a more convenient and the effective to the seminar and conference because presentation justify you. ठीक है, if you have such certain kind of issues and you have certain topics, then you can justify that topic with your effective communication skills and the presentation. So nowadays full technological support is given a presenter so that it may become easy and systematically. अब आपने देखा होगा, अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन इज द प्रॉपर, इट इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन इन विच, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटर कैन इफेक्टिवली पुट द लाइट ऑन देयर व्यूज़। जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उनके टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ईजिली, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ वो स्पीकर के सामने रख सकता है, so that it may become easy and systematically. If you have any information, if you have certain kind of knowledge related to present aspect of the business, okay, you can prove yourself and your information with the help of proper new technological aspects and the जो भी infrastructure है या फिर जो भी methods हैं, उनको use करके systematically और effectively आप audience को influence कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एकेडमिक कोर्स की बात करूं, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इज अ बिजनेस कोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशंस टू। ऑर्गेनाइजेशंस में भी व्हेन न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आर डिस्कस्ड, कोई नया प्रोजेक्ट है या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, देन यू कैन easily convey the information to your participants with the help of your presentation. Okay, तो उस presentations के थ्रू आप entire project के बारे में discussion कर सकते हो और जो भी participants हैं उनको information, अपने ideas, अपने views और अपनी information convey कर सकते हो। ठीक है, और साथ के साथ जो भी आप PPTs या slides use कर रहे हो, वो आपके प्रेजेंटेशन और आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग nowadays full technological support is given to the presenter. Okay, so presentation is a form of oral communication. It means the presentation of an oral message to listener or group of listeners. ठीक है, आप oral message क्या कर रहे हो, ग्रुप ऑफ लिसनर को प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, नाउ रीजन ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हैज रेज्ड अ सिंपल क्वेश्चंस, व्हाई प्रेजेंटेशन एट ऑल? Anything that you need to communicate can easily transmitted through the emails, messages and video calls. But the fact is that email and good substitute for written communication, not a oral communication. Okay, letter can never replace oral communication. आप letters को oral communication के साथ replace नहीं कर सकते हो। जो information आप खुद से with the help of words of mouth आप communicate कर रहे हो, वो information written communication के through effectively proceed नहीं हो सकती। ठीक है, सो विद द इंक्रीज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड द क्रॉस फंक्शनल वर्क and the coordination between the groups and the teams, the necessity of making presentation is to diverse group of people is to need of a
नीड ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो आज के टाइम में ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, चाहे मैं किसी एकेडमिक कोर्स जैसे कि मास्टर कोर्स MBA की बात करूं या फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम डे टू डे टास्क परफॉर्म करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रेजेंटेशंस डिलीवर करने होते हैं ताकि ईजिली हम अपने ग्रुप को इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें। ओके, अब फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस की कितनी फॉर्म्स होती हैं? प्रेजेंटेशन की 2 फॉर्म्स होती हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रेजेंटेशन, और आई होप आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो फर्स्ट तो होता है इंडिविजुअल और सेकंड वन होती है ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल So individual presentation refers to presenting thoughts, idea by only one speaker. केवल एक ही स्पीकर है, वो आइडिया डिस्कस कर रहा है, ठीक है, ऑन अ सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी सिलेक्टेड सब्जेक्ट है या फिर जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी इन्फॉर्म कंटेंट है बिफोर द कंसर्न लिसनर्स. So an individual presentation is the presentation where one speaker present his message to the audience. केवल एक ही स्पीकर है, वो अपना मैसेज ऑडियंस को डिलीवर कर रहा है. सो टॉपिक ऑफ मैसेज इज प्री डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइडेड है. सच प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन अ सुपरवाइजर इज टू इंस्ट्रक्ट अ वर्कर और वर्कर्स वर्क, ठीक है. और सेकंड वन होता है ग्रुप प्रेजेंटेशन. ग्रुप प्रेजेंटेशन रिफर्स टू प्रेजेंटेशन थॉट्स, आइडिया और प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट बाय मैनी स्पीकर्स. तो ग्रुप प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं जो वन बाय वन अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं टू द टारगेट ऑडियंस. ओके, मेंबर ऑफ द ग्रुप म्यूचुअली डिसाइडेड टू थ्रो लाइट ऑन द वेरियस सब्जेक्ट. म्यूचुअली वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उसमें जितनी भी सब टॉपिक्स हैं कौन किस टॉपिक को डिलीवर करेगा. सो देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप प्रेजेंटेशंस टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन मोर एंड मोर इफेक्टिवली. ओके, सो द ग्रुप लीडर्स कन्वे द होल प्रेजेंटेशन इन अ सिस्टमैटिकल मैनर. ओके, तो ये थे फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. नाउ ऑब्जेक्टिव्स. प्रेजेंटेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप क्यों प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, उसके पीछे क्या रीजन है. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है. रीजंस ऑफ प्रेजेंटेशन, ग्रुप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, व्हाई प्रेजेंटेशन कंडक्ट. सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेल्स पर्पस के लिए भी प्रेजेंटेशन डिलीवर किए जाते हैं. टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट प्रोडक्ट. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट प्रोडक्ट, ठीक है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए. सेकंड है क्रिएट गुडविल, create good image and goodwill. Every organization want to increase their goodwill and create their positive image. So due to this purpose organizations conduct a presentations and convey the information about the entire functions, achievements of the organizations, ठीक है. थर्ड है to promote style, working system and attitude. To promote style, working system and attitude. Fourth one, to decide future course of action. Fifth one objective is to suggest a solution to problem. कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस के लिए प्रेजेंटेशंस डिलीवर किए जाते हैं. टू सजेस्ट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. ओके, टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू द बॉडी.
नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट। कोई रिपोर्ट है, कोई रिसर्च किया आपने, उसके बाद जो रिपोर्ट है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो। कोई आइडिया है या फिर कोई मोटिवेशंस है कलीग्स को, सेल्स फोर्स को आप मोटिवेट कर रहे हो फॉर मोटिवेशन पर्पस। ठीक है। सो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मेड टू launch a new product in the market, to start a new course of program, to make aware of new concept, decentralize or extend business. Okay, so these are the objectives of presentations. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस में 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव। ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर बेटर प्रेजेंटेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशंस। तो ये टॉपिक हमारे अभी प्रेजेंटेशंस में रिमेन है। इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, प्रॉपर समझिए, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, फिर से डिस्कशन करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के इस टॉपिक पे। एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। हमेशा मोटिवेट रहिए, अपने गोल को हमेशा फोकस करिए। अपना जो भी आपका एक गोल है, अगर किसी ने भी अपना गोल सेट नहीं किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल एंड ऑलवेज फोकस ऑन दैट, तभी आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं।